ગુડ મોર્નિંગ એવરીબડી. આગળનો લેક્ચર પૂરો થઈ ગયો. મિત કવાર. હા સર, ક્યારનો થઈ ગયો. અચ્છા, કોનો લેક્ચર હતો? પ્રતીક સર નો. ઓકે, એવું છે. ઓકે ઓકે, સો we will wait till 11:30 and after that we will start. Okay, so till now you just જેટલા લોકો આવ્યા છે એમણે એક્ઝામ્પલની પ્રેક્ટિસ કરી. મેં તમને એક્ઝામ્પલ આવ્યા હતા પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં ચેન સર્વે માટેના. પ્રેક્ટિસ કરી? હા સર. હા, મિત કવાર તમે કરી છે. ઓકે, હા. શું કઈ કઈ ટાઈપની મિસ્ટેક થાય છે એક્ઝામ્પલ ગણતી વખતે? આ તમે જો એક્ઝામ્પલ ગણ્યા હશે તો તમને ખ્યાલ આવશે કે સાહેબ આ પ્રકારની ભૂલ થઈ. અને ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં જો તમને બધું સાચે સારું આવડી જાય તો દેટ ઇઝ વેલ એન્ડ ગુડ. અધરવાઇઝ મેજોરિટી ઓફ પીપલ જે છે એ ફર્સ્ટ અટેમ્પમાં ભૂલ કરે છે. ઓકે, સર એમાં છે ને રકમ સમજવામાં ભૂલ થાય ઘણી વાર. ઘણીવાર બાય સાયકોલોજીકલી આપણે એને ટુ લોંગ ની જગ્યાએ ટુ શોર્ટ વાંચી દઈએ. હા, પછી પ્લસ માઇનસમાં ભૂલ થાય. હા, મેજોરિટી ધારો કે ટુ લોંગ હોય તો તમારે પ્લસ કરવું પડે તો તમે માઇનસ કરી દો. સો પ્લસ માઇનસ ની ભૂલ રે. ઓકે, જૈનબ તમે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા છે ચેન સર્વે ના એક્ઝામ્પલ? હા સર, કર્યા છે. મોકલો તો ફોટો. ઓકે, શું તમારા મત અનુસાર શું ભૂલ પડે છે? મિસ્ટેક સર થઈ ગયો? એમાં આ બહુ વાંધો આવે છે કે તમે સર ઓલું ટુ લોંગ નું સમજાવ્યું હતું ને, પછી ટુ શોર્ટમાં છે ને ડાઉટ હજી હતા. એમાં હા બોલો. સમજાતું નહોતું કેમ કરવું નહીં. હા હા, ટુ શોર્ટ હોય તો ટુ લોંગ હોય તો તમે શું કરો? પ્લસ કરો છો ને. ધારો કે 20 સેન્ટીમીટર હા. ટુ લોંગ હોય તો પ્લસ કરો 30 પ્લસ 0.2. હવે એ જો હું હમ. કહી દઉં 20 સેન્ટીમીટર ટુ શોર્ટ હોય તો 30 માઇનસ કરવાનું 0.20. સિમ્પલ, બાકી વેલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ રહે. ઓકે સર. અનિકેત? એમાં સર હા, મને બોલો. એમાં સર એલ ડેશ જે ફાઇન્ડ કરવાનો હોય ને હમ એમાં જ છે ને અલગ અલગ ટાઈપ ના દાખલા હોય છે ને એમાં જ ભૂલ પડે છે. ઓકે, એટલે પ્રાઇમરી લેવલે તમે જોવા જાવ તો તમને એલ ડેશ ફાઇન્ડ કરવું એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે જો એમાં ભૂલ કરશો તો તમારો એક્ઝામ્પલ આખો જે છે ખોટો પડશે. સો એલ ડેશ ફાઇન્ડ કરતી વખતે ઓલ ઓફ યુ keep 2 points in mind. If the check test is given to you, હું તમને જરાક અહીંયા બતાવી દઉં બ્રીફમાં. ઓકે, મેજોરિટી જે છે હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ 11:30 થયું, બરોબર? અને પછી બાકીના જે આવશે એની રીતે, બરોબર? રાઈટ. સો હું તમને બ્રીફિંગ કરી દઉં ભૂલ પડવાના ચાન્સીસ ક્યાં છે, where you are making the mistakes. સો આને જરા સાઈડમાં કરી દઈએ. હું તમને સર હિન્દી કે ગુજરાતીમાં સમજાવજો. હમ 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 पहला तो तुम्हारे आपको क्या करना है कि आपको ये फॉर्मूलाज आपको ये पता होने चाहिए. सिंपल, आप इसका शॉर्ट फॉर्म कर दीजिए. CL करेक्ट लेंथ को मैं CL बोल दूंगा. CL करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू मेजर लेंथ ML इंटू एल डैश अपॉन L. अगर आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो एल डैश अपॉन L आएगा. अगर आप एरिया की बात कर रहे हो तो एल डैश अपॉन L स्क्वायर आएगा, राइट, और एरिया हो जाएगा. अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एल डैश अपॉन L रेस टू 3 हो जाएगा, राइट. ये हमने सीखा था प्रीवियस लेक्चर में. अब आपको ये फॉर्मूला के आधार पर आपको सारा जो एग्जांपल है वो कैलकुलेट करना है. लेकिन उसके लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, आपका ये जो एल डैश वाला पोर्शन है, एल डैश आपने गलत कर दिया तो आपका पूरा एग्जांपल ये गलत हो जाएगा, राइट. तो उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. कौन से पॉइंट? सबसे पहले कि आपको ये एग्जांपल में देखना है कि वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है कि नहीं. एस्ट्रिक मार्क्स है ना. जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां क्या होता है, लिखा हुआ आता है 50% डिस्काउंट, लेकिन वहां पे 50% के ऊपर क्या होता है, स्टार होता है कि वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है, यानी कि कुछ ही चीजों पे आपको ये 50% डिस्काउंट मिलेगा, है ना. लेकिन आप मॉल के बाहर तो देखते हो क्या है कि 50% डिस्काउंट डिस्काउंट, तो ये बाहर कंप्लीट लिखा हुआ था, लेकिन आप जैसे अंदर जाते हो तो वहां क्या होता है कि कोई कोई चीजों पे आपको 50% डिस्काउंट मिलता है. तो सिमिलरली आप एग्जांपल में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है क्या. जैसे कि मैं आपको बताता हूं
कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एज इट इज आपको रखना है, ठीक है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपने अगर चेन जो है लेबोरेटरी सर्वे फील्ड पे सर्वे पे जाने के पहले आपने टेस्ट किया है, तो वो जो है आपका टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पे कुछ बताया नहीं है इस एग्जांपल में, तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, तो आपको स्ट्रेट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है। तो यहाँ पे एल डैश की वैल्यू क्या रहेगी, टू लॉन्ग है तो प्लस, लॉन्ग है तो प्लस करेंगे, शॉर्ट करे है तो माइनस करेंगे। तो 30 प्लस करेंगे 0.1, 10 सेंटीमीटर है तो 0.1, राइट। तो ये हो गया आपका एल डैश। बाकी जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन दिया है तो इसका आपको हाफ करना है, आप ऐसे याद रख सकते हो। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या है, इफ यानी कि कंडीशन, ठीक है, इफ जो आम तो आम लाइकवाइज। सो इफ द चेन वाज करेक्ट, दिस इज द कंडीशन। तो अगर कंडीशन दी हुई है तो आपका जो 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग है वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो आप अगर आपको वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे तो एल डैश की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 20.06 डिवाइड बाई 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, 3 सेंटीमीटर। तो आपको सिंपल इस तरह से याद रखना है, हमारी कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, इफ द चेन वॉज करेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क। अगर आप काम स्टार्ट करने से पहले, चेन सर्वे स्टार्ट करने से पहले आपकी चेन की लंबाई जो है वो करेक्ट थी, ये कंडीशन आपको दिखाई दे, तब आपको क्या याद रखना है कि एल डैश जो है वो हमारा जो दिया हुआ है उसका आधा हो जाएगा, राइट। तो 20 प्लस 20.06 डिवाइड बाई 2 यानी कि इसका आधा हो गया, हमने प्लस कर दिया 20.03। बाकी सारी चीज जो है सिंपल है। अब इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था कि ये हमने दो पार्ट में किया है। यहाँ पे भी कंडीशन है इफ, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हाँ हमें कुछ प्लस माइनस करके एवरेज निकालना होगा, राइट। तो इस एग्जांपल में भी क्या है कि हमारी टोटल डिस्टेंस जो है 7800 है, राइट। तो हमने क्या किया, दो बार चेन को चेक किया, एक काम शुरू होने से पहले, और हमारा टोटल जो था 7800 किलोमीटर यानी कि 7.8 किलोमीटर। तो हमने 0 से स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर तक पहुंचे। तब हमने ऐसा माइंड में आया कि चलो एक बार और चेक कर लेते हैं कि चेन की लंबाई तो ठीक है ना, राइट। तो हमने यहाँ पे डबल चेक किया, हमने एक शुरुआत होने से पहले लेबोरेटरी में, और दूसरा फील्ड पे हमने चेक किया कि एक्चुअली जो है लेंथ फिक्स तो है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तो अब आपको क्या करना होता है, क्या पे एग्जांपल में देखिए, ठीक है। तब आपको मैंने जैसे समझाया था कि एरर जो होती है वो एवरेज यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। तो आपको सिर्फ इस तरह से देखना है कि काम शुरू होने से पहले, क्योंकि अगर ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम्पल नहीं आएगा, राइट। સર हाँ સર આ જે સમજ્યા 2.4 એક્ઝામ્પલ, સર એમાં જ એકવાર એમાં ટુ લોંગ છે તો એની બદલે એમાં એકવાર ટુ શોર્ટ કરીને સમજાવશો કેવી રીતે સોલ્વ हाँ થાય? हाँ સિમ્પલ સિમ્પલ છે, हाँ સમજાઈ દઉં છું, સિમ્પલ ઓકે છે। સર. ઓકે સો મેં જેવી રીતે તમને કીધું એવી રીતે कि वी हैव ए टोटल डिस्टेंस ऑफ 7800 मीटर, राइट। तो आपको इस तरह से ग्राफ बना लेना है ताकि आपको कोई एलडेस फाइंड करने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो ये हमारी बेसलाइन होगी, ठीक है, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है, राइट, वो है 7800। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे करेक्शन क्या है, 0। हमने लैब स्टार्ट करने से पहले कितना किया था, करेक्शन जो है वो फाइंड करके हमने बताया कि वो है 0, ठीक है, क्योंकि वो वहां पे आपको जो एग्जांपल में दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले कितना था, 0 सेंटीमीटर एरर थी, राइट। ये हम एरर की बात कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द वर्क। उसके बाद आप 4000 मीटर चले फ्रॉम ए टू बी, और ये हमारा आ गया यहाँ पे पॉइंट, लेटस से ये हमारा 4000 का पॉइंट है, राइट। ये पॉइंट जो है हमारा 4000 का है।
तो यहाँ पे हम चले तो आपको एग्जाम्पल की 2 बार आपको जो है वो एग्जाम्पल की जो रकम है वो याद रखनी है, यानी कि पढ़नी है। तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले, तो इस एग्जाम्पल को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल को ब्रेक करना पड़ेगा कि हर एक लाइन को आप ब्रेक कीजिए। तो आपकी चेन की लंबाई क्या है कि 30 मीटर चेन है, वो 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4000 मीटर। यानी कि आप 0 से चले और 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर तक चले और आप सी पॉइंट के पहुंचे। आप लेट अस से दिस इज योर सी पॉइंट, राइट, दिस इज योर ए पॉइंट। तो इस तरह से आप एक ग्राफ बना लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो हमने स्टार्ट किया था तब कोई एरर नहीं थी, 0 सेंटीमीटर की एरर। लेकिन आप एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, हाँ, आफ्टर द मेजरिंग ऑफ द 4000 मीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग लिखना है, 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, टू लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि प्लस, हम जो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो आवर चेन वाज फाउंड 6 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, राइट। नाउ इट इज टेस्टेड अगेन, यानी कि अब हम जो है 2 बार चेक कर रहे हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डेज वर्क। सो इट इज फाउंड 8 सेंटीमीटर टू लॉन्ग, ठीक है, आफ्टर द मेजरिंग द 7.8 किलोमीटर डिस्टेंस। सो अब जो है आपको प्लस 8 सेंटीमीटर हो गया है ना। राइट, तो अब जो है एल डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, आपको सिंपल करना है। तो यहाँ पे लिख के देता हूँ, एल डैश इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका, इसका एवरेज लेना है 0 + 6, राइट। 0 + 6, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है, डिवाइड बाई 2 कितना होगा, इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। हाँ, और पार्ट वन हम किसको बोलेंगे, इज इक्वल टू एसी को पार्ट वन बोलेंगे, राइट। समझ में आया। तो ये एल डैश 1 हो जाएगा, एल डैश आप 1 लिख दीजिए फॉर पार्ट 1 के लिए, राइट। इस तरह आप सिस्टमेटिक जाएंगे तब आपको पता चलेगा, कोई चांसेस ऑफ एरर आपके कम रहेंगे, राइट। वापस से अब दूसरे पार्ट के लिए, यानी कि एल डैश 2, दैट इज योर पार्ट इज सी बी, ओके। तो यहाँ पे कितना है, 6 है, +6 है, यहाँ पे भी +8 सेंटीमीटर है। तो हमारा एवरेज लेना है 6 + 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हम क्या कर रहे हैं, हम एरर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर पार्ट 2 विच इज योर सी बी, राइट। तो अब जो बाकी का जो कैलकुलेशन वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो फॉर्मूला के बेसिस पे आप जाइए, तो ये सीबी डिस्टेंस कितना होगा, सीबी डिस्टेंस जो है सिंपल है कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना था, 7800 माइनस 4000, राइट। तो वो आपका हो जाएगा सीबी डिस्टेंस, तो वो कितना होगा, 3200 आई थिंक, राइट, सॉरी 3800, ओके। सो बाकी जो कैलकुलेशन सिंपल है, ये चीज आपको याद रखनी है कि हर बार आप इस तरह से लिखिए कि स्टार्टिंग में एरर कितनी थी, 0 सेंटीमीटर, फिर हमने कुछ डिस्टेंस मेजर किया 4000 मीटर, वहां पे एरर कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, और एट द एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका टू लॉन्ग का जो फॉर्मूला है वो, राइट। तो अब जो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, इसमें क्या है, जैसे सिंपल हमारा डिस्टेंस जो है वो 4000 रहेगा, राइट। तो हमारा मेजर डिस्टेंस कितना है, 4000, क्योंकि हमने ए से सी तक चले तो 4000 है। अब एल डैश कितना लिया, टू लॉन्ग है, तो हमने कितना किया कि ये 3 सेंटीमीटर है उसमें ऐड कर दिया, तो हमारी लेंथ बन गई 30.03,
एल डैश बन गया 30.03 डिवाइड बाय 30, करेक्ट लेंथ जो है वो 30 है। तो आपको पार्ट 1 का आंसर मिल गया 4004 मीटर। इसको अगर आप समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने फील्ड पे जो मेजर किया 4 किलोमीटर डिस्टेंस या 4000 मीटर डिस्टेंस, वो एक्चुअली चेन की एरर की वजह से कितना हो गया, 4004 मीटर। एक्चुअली हमने मेजर किया 4000 मीटर, लेकिन उसका एक्चुअल लेंथ क्या है कि 4004 मीटर है, राइट। अब सेकंड पोर्शन की बात करें, सो 3800 विल बी द ट्रू मेजर डिस्टेंस, हमने मेजर इतना किया, राइट। लेकिन एल डैश की वैल्यू कितनी रहेगी, ये 7 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितने हो गए 30.07, राइट। हमने प्लस करेंगे, 30 में प्लस करेंगे तो 30 प्लस 30.07, राइट। तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 30.07। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है और दोनों को जोड़ दीजिए, राइट। तो आपका ट्रू डिस्टेंस कितना हुआ, एक्चुअली आपका डिस्टेंस है 7812.9 मीटर, लेकिन आपने फील्ड पे जाके मेजर कितना किया 7800 मीटर। तो यहाँ पे एरर आ गई, 12 मीटर की एरर आ गई, राइट। तो ये एरर आई किसकी वजह से, आपके टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, ठीक है। समर सीजन में आप काम करते हो तो आपकी चेन जो है एक्सपेंड हो जाती है, और विंटर सीजन में काम करते हो तो वो हो जाती है श्रिंक हो जाती है। तो ये मोटा मोटा जो, अब मैं जो आपको टू शॉर्ट करके आपको दिखाओ, राइट। तो यहाँ पे टू शॉर्ट की जगह तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे टू शॉर्ट लिखना पड़ेगा हमें, सिंपल है, रिप्लेस ही करना है। सिमिलरली तो यहाँ पे भी एट द एंड ऑफ द डे -8 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, राइट। तो एल डैश तो कितना रहेगा, ये अलजेब्रिक ही रहेगा, ठीक है, एवरेज तो लेना ही है, टू शॉर्ट है तो यहाँ पे सिंपल आपको करना है, टू लॉन्ग की जगह शॉर्ट लिखना है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेगी। अब आपको क्या करना है कि हम एल डैश फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए तो मैं आपको बताता हूं कि एल डैश 1 फॉर टू शॉर्ट केस, ओके, फॉर टू शॉर्ट केस, तो कितना लेंगे आप, कि आपको क्या करना है, टू शॉर्ट है तो माइनस करना है 30.00 माइनस कितना सेंटीमीटर लेस करना है, 0 पॉइंट, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.03, राइट। तो ये जो आंसर आपका आता है तो वो आपका हो जाएगा एल डैश 1, राइट। फिर एल डैश 2, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, टू शॉर्ट, तो उसमें क्या करना है 30 में से बात करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 30.00 माइनस दूसरे पार्ट के लिए कितना है 7 सेंटीमीटर टू शॉर्ट, तो 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, राइट। तो 0.07 हो जाएगा, डिडक्ट कर दो, तो ये आपका मिल जाएगा एल डैश 2। अब डाउट है इसमें जैनब, एनी डाउट, कोई डाउट है जैनब, है, एम आई ऑडिबल, संतोष, नो सर। ओके, इतना सिंपल है, राइट। यस सर, ओके ऑडिबल। ओके, सो अगर आपको ये चीज जो है बेसिक जो चीज है वो आपको अगर मीटर और सेंटीमीटर में फर्क नहीं पड़ता, तो इसके लिए तो भाई आपको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टैंडर्ड 1 में जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी किताब खोल के आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। और ये इतना सिंपल है, इट इज वेरी इजी to check it out and calculate the examples. This can be asked in the 8 marks, लेकिन ये आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये अगर आपको 8 मार्क्स में मैंने पूछ लिया तो आपको सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, राइट। तो इतना सिंपल है। अब जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आज मैं आपको 2 असाइनमेंट्स दूंगा, एक तो चेन सर्वे के ऊपर और कंपास सर्वे के ऊपर, वो दोनों जो है आपको कब तक सबमिट करना है, आपको मुझे
नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे तक सबमिट करना है, ठीक है, 17 अक्टूबर। तो वो मैं आपको ई कंटेंट में भेज दूंगा और आपको गूगल क्लासरूम में भी भेज दूंगा। 17 अक्टूबर में आपको दोनों असाइनमेंट्स मुझे, उसमें मैं ये एग्जांपल्स रखूंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बोला है ना, आपको वर्ड को रिप्लेस करना है। सॉल्व द अबव एग्जांपल्स बाय कंसीडरिंग टू शॉर्ट इंस्टेड ऑफ टू लॉन्ग। तो मैं यही 3 एग्जांपल आपको टू शॉर्ट लिख के आपको वहां पे पूछूंगा, राइट, ताकि आपको अच्छे से जो है ये समझ में आ जाए। इसमें कोई डाउट है अभी? एक बात आप माइंड में क्लियर कर दीजिए कि अगर आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपने ये बैठ के आपने गिना नहीं है, तो आपको क्या होगा, ये आपको एरर कहाँ पे, आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही वो पता नहीं चलेगा। एक बार आपने अपनी मिस्टेक जो है वो राइट कर ली, करेक्ट कर ली, तो उसके बाद आप एग्जाम्पल कभी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा, और वो फर्स्ट स्टेप आप इजीली ले सकते हो ये रेफरेंस रख के, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप जरा प्रैक्टिस कीजिए। मैं देखना चाहता था कि आप में से कितने लोग जो है वो प्रैक्टिस रियल में करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे मालूम था कि आपको प्रॉब्लम होगा, या एग्जाम्पल आपको आसानी से नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको, लेकिन सेल्फ लर्निंग जो है आप में जो है ना अंदर से होना चाहिए सेल्फ लर्निंग के लिए, तो इसीलिए मैंने वो चेक किया, राइट। तो आज का जो लेक्चर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज जो है हम थोड़ा सेकंड मॉड्यूल जो है पूरा आपका थर्ड मॉड्यूल कंपास सर्विंग, वो आप जो है आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इधर उधर कहीं इंस्टाग्राम पे चले मत जाना, ठीक है, और कहीं बाहर मत चले जाना फोन रख के, क्योंकि ये आपने मिस कर दिया तो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट आप 30 मार्क्स का आपको लॉस होगा, ठीक है, 30 to 35 एमसीक्यू में और एनी अदर थिंग, राइट। तो अब जो है आपका पूरा ध्यान जो है वो कंप्लीट यहाँ पे ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे किस्से मिलते हैं कि भाई लेक्चर चालू है और किसी दोस्त ने पोस्ट कर दिया कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, और उसको लाइक करने के लिए आप ही के क्लास में से 10 लोग वहां लाइक करने चले जाते हैं। सो दीज आर द केसेस, दीज आर आई एम ऑब्जर्विंग इट, ठीक है। मेरा जो लेक्चर है उसके पहले का जो लेक्चर है उसमें ऐसा करते हैं, अपने क्लास में कुछ पोस्ट कर दिया, उसको लाइक करने के लिए 10 लोग चले गए, तो आप क्लास में क्या पढ़ रहे हो, है ना। अल्टीमेट लॉस आपका ही है, राइट। तो इधर उधर जो है देखना बंद कर दीजिए, और इसमें जो है कंप्लीट आपको पूरा ध्यान रखना है, राइट। तो अब एग्जाम्पल आप ट्राई करना, आपको अच्छे से आ जाएगा, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हेलो सर। हाँ बताइए। सर वो एग्जांपल मैंने व्हाट्सएप पे किया था, वो उसको चेक कर लेते ना, सही है या गलत है सर? हाँ, जस्ट वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट, व्हाट आई एम चेकिंग इज संतोष। आपने भेजा तो है, राइट, मैं देख लेता हूँ, आपने कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर है तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। ओके, राइट, ओके, राइट। थर्ड वाला भी ओके, राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर जो है वो सही है, राइट। तो ओके सर। बाकी हाँ, आप कोई इश्यू हो अगर, ठीक है, तो आप जो है संतोष से पूछ सकते हो, मतलब जो बिहार के स्टूडेंट है उनको शायद ये लैंग्वेज में कोई इश्यू हो, ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो संतोष आपको हेल्प करेगा। मीनवाइल गुजराती पीपल जो है જેને સમજાણું નથી, એકબીજા દોસ્તારની ફ્રેન્ડની હેલ્પ લો એટલે તમને વધારે ઇઝીલી સમજાઈ જાય, ઓકે। અને વધારે ના સમજાય તો તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, ઓકે, અને I will explain you and I will guide you, right? So you can take a screenshot. Now let us start with the next one. One last topic is remaining in the chain surveying topic. ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चेन सर्वे जब आप करने जाते हो तब आपका सिंबल यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो चेन लाइन को जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि 3 डॉट्स बीच में आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको ये संभाल के रखना है, एग्जाम पे मैं पूछूंगा
राइट। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मैं पूछ सकता हूँ कि आप नॉर्थ डायरेक्शन की सिंबल ड्रॉ करके बताइए, तब आपको इस तरह की ड्राइंग बतानी है। आप जो है पेव्ड रोड की फिगर बनाइए, तब आपको इस तरह की दो सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। अनपेव की जो है वो सिंपल हो जाएगी, नजीक नजीक यानी कि क्लोज क्लोज हो जाएगी। रेलवे लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है। स्टेशन हमने आपको बताया है कि चेन सर्वे का जो स्टेशन है वो ट्रायंगल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। अगर आप ट्री इंडिकेट करते हो तो ट्री इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई ऐसा बनाएगा नहीं, जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे कि ऐसे बना दिया है ना, ऐसा करके। ऐसा ट्री ट्री का सिंबल हमारे सर्वेइंग में नहीं है। हमारे सर्वेइंग में कैसा सिंबल है, एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल के सेंटर से इस तरह से आप एल जैसा बना दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं बनाएगा। जैसे मैंने ट्री का पूछा तो आपको बनाना कैसा है, इस तरह से, राइट। फिर इलेक्ट्रिक पोल है तो उसको स्क्वायर बनाना है। टेलीफोन है, टेलीफोन का जो है वो आपको राउंड बनाना है। फेंस कहीं पे भी तो इस तरह से आपको बनाना है। और लास्ट में गेट जो है वो इस तरह से। तो मैं आपको 10 में से किसी भी 2 या 5 ये पूछ सकता हूँ वन शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट। उसके अलावा हमारा एक पॉइंट जो बाकी था वो है वो ऑब्स्टेकल्स इन द चेनिंग। हमने एक इनडायरेक्ट रेंजिंग का तो सीखा ही है, ठीक है, जिसमें आप देख नहीं सकते और बिल्डिंग बीच में आ गई है, ठीक है। तो मोटा मोटा जो है इसमें 3 केसेस होते हैं ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग में। आप इसका आप ये नोट डाउन कर लीजिए 1 2 3 पॉइंट, ठीक है। चेनिंग करते समय चेन सर्वे आपको सपोज 10 किलोमीटर का करना है, और वहां पे देख सकते हो विजन, सॉरी, आप चेनिंग कर सकते हो लेकिन आप देख नहीं सकते, यानी कि ए और बी पॉइंट जो है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। आप चेनिंग नहीं कर सकते, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड, बट आप देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए बीच में कोई सरोवर आ गया या लेक आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ए और बी पॉइंट को देख सकते हो, लेकिन आप चेनिंग उस लेक में से नहीं कर पाओगे, आपको किसी और जगह से करना होगा। और तीसरा केस जो हमारा इंडायरेक्ट रेंजिंग का है, आप चेनिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि बिल्डिंग है बीच में, ए और बी बी पॉइंट दिख भी नहीं रहा है और आप चेनिंग भी नहीं कर सकते वहां पे। तो ये हम सारे तीनों केस हम डिस्कस करेंगे इमेज के साथ, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है। एक तो हो जाएगा आपका दो केस में आपको डिवाइड करना है, एक तो हो गया चेनिंग, राइट, और दूसरा केस हो गया विजन, यानी कि आपको दिख रहा है कि नहीं दूसरा स्टेशन, राइट। तो हमारे केसेस कैसे बनेंगे, वन टू थ्री, राइट। तो हमारा फर्स्ट केस क्या है, तो फर्स्ट केस क्या है कि आपको चेनिंग जो है वो फ्री है, यानी कि चेनिंग आप कर सकते हो। तो फर्स्ट केस में आप चेनिंग कर सकते हो, लेकिन विजन यानी कि आपको दिख नहीं रहा है, तो दैट इज योर फर्स्ट केस, राइट। दूसरे केस में क्या है, चेनिंग आप नहीं कर सकते हो, ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी कि बिल्डिंग आ गई, सॉरी बिल्डिंग नहीं, आपको लेक आ गया या सरोवर आ गया कुछ भी, राइट। तो आप चेनिंग जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन आप देख सकते हो। तो तीसरे केस में बोथ आर रिस्ट्रिक्टेड, आप चेनिंग भी नहीं कर सकते, विजन भी नहीं देख भी नहीं सकते। इसका आप सोच सकते हो, इस तरह से आप 3 केस याद रख सकते हो, राइट। चेनिंग, फर्स्ट केस में चेनिंग कर सकते हो और दिख नहीं रहा है ए और बी पॉइंट, राइट। दूसरे केस में चेनिंग आप नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हो। तो तीसरे केस में दोनों अलाउड नहीं है, राइट। हम इमेज देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप घने जंगल में सर्वेइंग कर रहे हो, ठीक है, ये हमारा फॉरेस्ट आ गया, तो आपको जाना है ए से बी पॉइंट तक सर्वे करना है। लेकिन आप जैसे ही आप यहाँ पे आए सी पॉइंट के पास, तो घनघोर जंगल आ गया, फॉरेस्ट आ गया। तो अब क्या करेंगे आप इसका केस देखिए, आप जो है चेनिंग तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, ए से बी पॉइंट आप देख नहीं पाओगे क्योंकि घनघोर जंगल है, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि सिंपल मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब आपको क्या करना है कि ए
बी के बीच में आपको 2 पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं। ये सी पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, डी पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद वहां परपेंडिकुलर चलिए, राइट। और या फिर किसी भी एंगल पे आप बी से B1 पॉइंट पे आ जाइए, जहां से आपको ये ए पॉइंट दिखे। उसके बाद जो है आप सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे जो B1 का डिस्टेंस है, यानी कि B to B1 डिस्टेंस डिवाइड बाय, अगर हम A to B1 करें, A to B1 करें, ठीक है, A B1 करें, और उसका जो रेशियो हम निकाले तो वो कितना होगा, वो मस्ट बी इक्वल टू द C2C1 बेस टू A2C1। तो आपको याद कैसे रखना है, अगर मैं इसको कॉपी करके वहां पे दे लेके जाऊं, तो आप सिंपल, अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे इस तरह से, राइट। अगर मैं इसको ए, मैथमेटिक्स में आप ये पढ़ते थे, ठीक है, बी और सी, तो यहाँ पे मैंने बीच में कहीं पे भी एक लाइन बना दिया और उसको नाम दे दिया डी और ई, राइट। तो आपका मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर मैंने ये दोनों, ये ट्राइंगल आपका बनता है कहीं पे भी, तो आप जो है ए बी डिवाइड बाय बी सी करेंगे तो वो इतना होगा कि ए डी डिवाइड बाय डी ई। यानी कि आपको कंपेयर क्या करना है, बड़ा ट्राइंगल ले रहे हो तो आपको बड़ी बाजू लेनी है, यानी कि ए बी लेनी है, राइट, ए बी लेनी है। तो उसके नीचे जो है डिनोमिनेटर में क्या रखना है, बी सी रखना है, बड़ा बेस रखना है। अगर आप छोटे ट्राइंगल यानी कि ए डी ई की बात कर रहे हैं, तो आपको, अगर आप ए डी और ए ई लेते हैं तो बेस में रखना है ई डी। तो ये सेम फॉर्मूला है, उसकी मदद से आप बी बी डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7। ओके, वन मोर केस इज, यू कैन से चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड। आप चेनिंग नहीं कर सकते लेकिन आपका विजन क्लियर है, यानी कि यहाँ पे लेक आ गया, यानी सरोवर आ गया, तो तड़ाव आवे गयो बच्चे, तो તમે શું કરશો? आपको किस तरह से करना है, आपको इस तरह से आपको एक 90 डिग्री यानी कि बाईपास रोड बना लेना है, राइट। तो आप P और R के बीच के हमें चेन सर्वे करना है, तो आप क्या करेंगे कि ए पॉइंट पाएंगे और 90 डिग्री चले जाएंगे, और ए बी जितना डिस्टेंस है वहां पे सी डी डिस्टेंस बनाएंगे, और वापस से बी पॉइंट पे आके वापस चेन सर्वे स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमने बाईपास रोड बना दिया। पहले हम जाना था कहाँ पे, पी से आर तक जाना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि बीच में जो है सरोवर आ गया है, लेक आ गया। तो हमें अब चलना कैसे पड़ेगा, तो पी से ए तक चलिए, ए से सी, डी, बी और आर। तो इस तरह से आप बाईपास कर देंगे पूरे पॉन्ड को। सिमिलरली सेकंड बी पॉइंट हम देखें तो पाइथागोरस भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हम एसी की लेंथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रिंसिपल। we'll simply move forward in AB direction, okay, at 90 degree to the line, and we can simply form a triangle over there so that we will match the Pythagoras principle, right? You can take a screenshot of this also, okay, and meanwhile this one also। मान लीजिए रिवर आ गई, ठीक है, तब भी आप प्रिंसिपल लगा सकते हैं पाइथागोरस का। आप चेन सर्वे करते करते आए, आर आपसे आर से पी तक जाना है, तो बीच में नदी आ गई, तो नदी में आप सर्विंग चेन जो है वो नहीं कर सकते, चेन सर्विंग नहीं कर सकते, लेकिन आप नदी के इस पार से उस पार तो देख सकते हैं। ओके, सो दैट इज अवर केस नंबर 2। तो इसमें आपको क्या करना है कि पाइथागोरस का प्रिंसिपल लागू कर दीजिए, ठीक है। सो दैट इज वेरी इजी टू यू while doing a chain serving, right? Now in case of third case, we need to verify for the twice। आप चेनिंग भी नहीं कर सकते और आप देख भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे, आपको अनदर बाईपास मेथड यूज कर लीजिए।
आपको चेकिंग ट्वाइस, आपको 2-2 पॉइंट्स लेने हैं, यानी कि टोटल 4 पॉइंट्स लेने हैं उस ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में। ए, बी और सी, डी, अगर हमें पी से आर जाना है उसके हिसाब से आपको लेंथ के हिसाब से आपको इस तरह से ऑब्स्टेकल्स जो है वो रिमूव करना है। ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था इनडायरेक्ट रेंजिंग में, राइट। मैं अगर आपको वहां पे लेके चलूं, इनडायरेक्ट रेंजिंग ये वाला केस है, ये हो गया आपका थर्ड केस, ये आपको अच्छे से मालूम है, राइट, ये वाला पॉइंट। तो रेसिप्रोकल रेंजिंग इज द थर्ड केस ऑफ द ऑब्स्टेकल्स इन द चेन। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब जो है मैं आपको पूछूं कि एक्सप्लेन ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्विंग विथ रिस्पेक्ट टू चेनिंग एंड विजन बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टेड, तब आपको क्या करना है? उसका सिंपल आंसर है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग का जो आपने सीखा है वो आप लिख दीजिए, राइट। तो फाइनली जो एमसीक्यू है, शॉर्ट क्वेश्चन से एग्जाम में आएंगे, वो आपको 2 बार पढ़ने होंगे ताकि कोई मिसमैच या ट्विस्ट किया हुआ एमसीक्यू हो, राइट, तो आपको आसानी से आंसर मिल सके, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे चेन सर्विंग का जो मॉड्यूल है, राइट, ये यहाँ पे हमने पूरा सीख लिया है जितना आपके लेवल का जो सीखना था। यहाँ पे एमसीक्यूज है, वो मैंने ये इन कंटेंट में आपको ऑलरेडी अपलोड करके दिया है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देखना है, कुछ डिफिकल्ट है, कुछ सिंपल है, ठीक है। तो ये जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आपके चेन सर्विंग के हिसाब से आपको जितना सीखना था वो आपने सीख लिया। अब जो है हम तीसरा मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कोई डाउट है आपको तो अभी पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, कोई डाउट है चेन सर्विंग में? राइट, अदरवाइज हम जो नया मॉड्यूल जो है स्टार्ट करने जाते हैं, राइट। खंजन परमार, एनी डाउट? राजकुमार वैष्णव, નથી ભાઈ બેમાંથી એક રાજકુમાર વૈષ્ણવ is not there. ઓકે, રાજીનામું આપી દીધું લાગે. ઓકે ફાઇન, કોઈ વાંધો નહીં. Let us start with the our third module. Okay, so which is just I need to there is a connection loss, but તમને ખ્યાલ છે આ બધી વસ્તુ કે આપણે કંપાસ સર્વે જે છે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે? વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ ધ કંપાસ સર્વે, બટ બિફોર ધેટ યુ જય સરે તમને થોડુંક બ્રીફિંગ આપ્યું હશે અથવા તમને વધારે ડિટેલમાં ખબર હશે. ઇઝ ધીસ વિઝિબલ ટુ યુ? સ્ક્રીન ઇઝ વિઝિબલ ટુ યુ? Yes, sir. Okay, fine. Okay, now you
हाँ 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 हाँ। तो अब आपको पता है कि ट्रैवर्सिंग क्या होता है, फिर कितने टाइप के कंपास होते हैं, फिर आप जो है वो फोर बेरिंग, बैक बेरिंग, वो सब मालूम है आपको? क्वाड्रेंटिकल बेरिंग WCB में से आपको RB में कन्वर्ट करने का एग्जांपल आपको मालूम है? हाँ सर। वाला ऋत्विक वाजा, यस टेल मी। સર ફોર બેરિંગ ને બેક બેરિંગ ના એક્ઝામ્પલ્સ પણ કરાવ્યા અને એ ડિગ્રી જો કે આપણે કન્વર્ટ કેમ કરવા ક્વાડ્રન્ટ બેરિંગ ને હોલ બેરિંગ માં કે એવું. ઓકે, તો આઈ હોપ ધેટ તમને આટલી વસ્તુ ક્લિયર હશે. નંબર 1, ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ થિંગ, ડિફરન્ટ टाइप्स ऑफ द कंपास. તમને કેટલા ટાઈપના કંપાસ છે? ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपास. आपको ये मालूम होगा. फर्स्ट पॉइंट, आपको कितने टाइप के कंपास है वो पता है. ठीक है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए. ठीक है, आपको ट्रैवर्सिंग के बारे में पता है कि 2 टाइप के ट्रैवर्सिंग है, ओपन ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स, राइट. आपको बेरिंग के बारे में पता है, बैक बेरिंग, फोर बेरिंग. आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेरी कंपास का डिफरेंस मालूम है, राइट. आपको बॉल सर्कल बेरिंग एंड रिड्यूस बेरिंग और क्वाड्रेंटिकल बेरिंग का डिफरेंस पता है. उसके बेसिस पे जो एग्जांपल्स है वो आपको मालूम है, राइट. उसके बाद क्लोज ट्रैवर्सिंग का आपका एग्जांपल आपने कंप्लीट किया है. फोर बेरिंग कैसे, वो क्लोज सर्किट कैसे बनाते हैं वो आपका एग्जांपल हुआ है, राइट. एंड यू आर अवेयर अबाउट द मैग्नेटिक बेरिंग. मैग्नेटिक बेरिंग તમને ખબર છે? મેગ્નેટિક બેરિંગ હોય, આઇસોગોનિક લાઇન્સ હોય, એગોનિક લાઇન્સ હોય. આર યુ અવેર અબાઉટ ધેટ, ઋત્વિક? ના સર એ હજી સુધી નથી. એટલે અહીંયા સુધી તમને ખબર છે કે એક્ઝામ્પલ તમે કેલ્ક્યુલેટ કર્યા છે ક્લોઝ ટ્રાવર્સિંગ ના એક્ઝામ્પલ્સ? સર ખાલી ટ્રાવર્સિંગ ના કર્યા છે, એમાં પણ જે ડિગ્રી આપેલ હોય એમાં આપણે ઇન્ટરિયર એંગલ ને Yes. ફાઇન્ડ કરવાના હોય. અચ્છા, એ એક્ઝામ્પલ તમે કરો છો ને તમને ખ્યાલ છે, રાઈટ. અપ્લાય ફોર નેસેસરી ચેક્સ ને, બરોબર ને, રાઈટ. Okay, so I hope that majority of the compass survey module is clear to you. Just have a brief look of that compass survey, okay, because this module is completely based on the practical. Okay, so you are doing the examples, you are aware about the different kind of the compass. That is enough for this kind of module. Okay, so let us have a brief look and broad overview of the compass survey module. This PPT I have already uploaded in your e-content. Okay, so now this is visible to you. Okay, compass survey, which is your unit number 3. We will go with the introduction, right? Then we will check it out the different types of the compass, and finally bearings and errors in the compass survey. This might this is new to you. Okay, ये आपके लिए नया होगा. तो स्टार्ट करते हैं. कंपास सर्वे जो है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है ट्रैवर्सिंग, राइट. तो आपका घर जो है, राइट, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ द ट्रैवर्स. एक होता है ओपन ट्रैवर्स, दूसरा होता है क्लोज ट्रैवर्स, राइट. तो क्लोज ट्रैवर्स जो है, मान लीजिए आपका घर है, आपका जो घर है वो क्लोज ट्रैवर्स है. क्यों? क्योंकि आपने इस तरह से आपका प्लॉट होगा, उसमें आपने यहाँ पे घर बनाया है, राइट. तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे क्लोज्ड होगा. आप किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, अगर कॉर्नर तक जाएंगे ऐसे, राइट, तो वापस से उस कॉर्नर पे आ जाएंगे, यानी कि आपको क्लोज सर्किट मिलेगा. तो इसका एग्जांपल आपको कैसे याद रखना है? आपका घर हो गया, किसी भी टाउन प्लानिंग स्कीम हो गई, राइट, किसी भी आप पॉन्ड या नली की लेक ले सकते हैं, राइट. तो वो आपका हो गया क्लोज ट्रैवर्स. लेकिन ओपन ट्रैवर्स, जो वहां पे कभी इस तरह से लूप नहीं बनता, राइट, लूप कभी नहीं बनता, वो सिंगल हैंडेड इनफाइनाइट जर्नी होती है. तो उसमें आप क्या करेंगे,
उसका एग्जाम्पल है हाईवेज, राइट। तो हाईवेज जो है वो इस तरह से होता है कि अगर ए पॉइंट से चले और ई पॉइंट तक आपको पहुंचना है तो आपका ओपन ट्रैवर्स बनेगा, राइट। फिर रिवर होगी, रिवर भी इस तरह से बहती बहती कहाँ जाती है, समुद्र में चले जाती है, वो भी ओपन ट्रैवर्स हुआ, राइट। तो आपको ये सारी चीजें आपको समझनी है। फिर हो गया रेलवे लाइंस, वो भी ओपन ट्रैवर्स हो गया, रेलवे लाइंस, राइट। इस तरह से आप जो बिछाते हैं वो भी आपके इनफाइनाइट जर्नी होती है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंपास। सिंपल, कंपास इज नथिंग बट, તમે જો હોકા યંત્ર જોયું હોય ગુજરાતી લોકો, અને इंग्लिश में આપણે કહીએ કે डायरेक्शन फाइंडर, ठीक है। अगर आप मोबाइल में भी आता है कंपास, कंपास की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हो, और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। नॉर्मली ये जो समुद्र में आप जर्नी करते हो तब आपको मालूम नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो अगर आपने वो एक मूवी आई थी बीच में, कौन सी, हिंदी वाली, टर्बिडो वाली, उसमें ये सारा कंपास का अच्छे से समझाया है। वो मूवी था वो, इंडिया और वो पाकिस्तान के सबमरीन जो है बीच में वो लगाते हैं, टॉर्पीडो छोड़ते हैं, गाजी अटैक। हाँ गाजी हाँ, तो वो मूवी अगर आप देखोगे तो उसमें ये जो सारा कंपास सर्विंग हम जो सीख रहे हैं ना वो आ जाएगा उसमें, राइट। विथ थ्रिलर, आपको थ्रिलर के साथ ये कंपास सर्विंग जो है यूनिट 3 पूरा आपको आ जाएगा। तो सिमिलरली कंपास इज नथिंग बट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, okay, to find the direction, particularly for the in case of compass surveying reference line, okay। तो यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपकी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन आपको ये मैं पढ़ देता हूँ। If a long narrow strip of steel or iron is magnetized and is suitably suspended or pivoted above a point near its center, it will oscillate freely about the vertical axis and will tend to establish itself in a magnetic meridian. સિમ્પલ है, તમે નાના હતા 7th स्टैंडर्ड में ત્યારે एक एक्सपेरिमेंट કર્યો હશે, ओके। उसमें क्या था कि आप जो है कोई भी मैग्नेटिक निडल है उसको आप सस्पेंड कराओगे किसी भी पॉइंट पे तो वो अल्टीमेटली नॉर्थ डायरेक्शन में जाके रुकेगी, ठीक है। तो यही चेन सर्विंग, यही कंपास सर्विंग का फंडामेंटल है, राइट। अब जो है हमारे पास दो टाइप के कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, राइट। ये आप इमेज देख सकते हो, क्योंकि इसमें प्रिज्म है तो इसको हम प्रिज्मेटिक कंपास बोलेंगे। दूसरे एंगल से हम देखेंगे तो पता चलेगा ये आपका प्रिज्म है ट्रायंगुलर शेप में, राइट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रिज्मेटिक कंपास। और ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, राइट एंगल, राइट। सो दैट इज द प्रिज्मेटिक कंपास। अगर हम प्लान व्यू में देखें तो ये प्रिज्मेटिक कंपास इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मेन पार्ट्स क्या है, ये एक प्रिज्म है, एक नीचे जो है वो कवर है, कैप। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट वेन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन, राइट। उसके बाद एक रिंग है, इसको ग्रेजुएटेड रिंग बोलेंगे, सर्कुलर शेप में आपको दिख रही है, राइट। और कुछ रीडिंग्स उस पर मार्क किए गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रिज्मेटिक कंपास का इमेज है। सिमिलरली अगर हम सर्वेयर कंपास देखें तो उसमें कुछ रिंग जो है वो फिक्स है, यहाँ पे देख सकते हैं, और रीडिंग कुछ मार्क किए गए हैं, 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90 और 0 to 90। और यहाँ पे जो है निडल, ये निडल है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक निडल है, उसको यहाँ पे अगर आपने रेड कलर का मार्क दिखा है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट। तो जैसे ही आप कंपास छोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑस्किलेट करेगा, यानी कि थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, और ये जो कंपास मूव करके नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा। ये जो आपकी निडल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाएगी, राइट। So this is the image for that. You can see north, south, east and west. Okay. अगर हम कंपेयर करें दोनों को, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास को, तो
कंपैरिजन में प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म होता है, सर्वेयर कंपास में नहीं होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में आपकी जो निडल है, ठीक है, निडल वो कनेक्टेड है आपके रीडिंग्स के साथ, देख सकते हैं कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, देख सकते हैं, ठीक है, कनेक्टेड है आपके रीडिंग्स के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज नॉट कनेक्टेड, राइट, ये फ्री है, यहाँ पे निडल जो है वो फ्री है। उसके बाद रीडिंग में आपको डिफरेंस पता चलेगा, यहाँ पे रीडिंग होता है 0 to 360 डिग्री, राइट, प्रिज्मेटिक कंपास में आप मेजर कर सकते हो 0 to 360 डिग्री। लेकिन सर्वेयर कंपास में कैसे आपको रीडिंग मिलेगा? रीडिंग मिलेगा आपको जो वो मूवी में आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट, तो वो आपको रीडिंग इसमें मिलेगा नॉर्थ 30 डिग्री, लेट अस से वेस्ट, ओके। तो 0 to 90 आपको प्राइमरी रीडिंग मिलेगा, ओके। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस जो मैंने आपको बताया है वो आपके स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। सो जो मैंने बताया वो सारी चीजें इसमें है। निडल इज एक्ट एज ए इंडेक्स, नॉट एक्ट एज ए इंडेक्स, ओके। बॉक्स होता है, निडल होती है, ठीक है, और ग्रेजुएटेड रिंग जो है अटैच होती है प्रिज्मेटिक कंपास में, ठीक है। फिर सर्वेयर कंपास में आप 0 to 90 डिग्री रीडिंग ले सकते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास में WCB यानी कि वॉल सर्कल बेरिंग सिस्टम होती है 0 to 360 डिग्री, एंड यू कैन चेक इट आउट ऑल द पॉइंट्स, ओके, वेरी इजी। इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज विदाउट ट्राइपॉड, बोथ केस कि आप ऐड कर सकते हैं, राइट। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, मैं एग्जाम पे आपको पूछूंगा कि आप मुझे प्रिज्मेटिक कंपास का फिगर ड्रॉ करके बताइए विथ पार्ट्स, तब आपको ये जो हमने 3D में इमेज देखा वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये असाइनमेंट में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो असाइनमेंट में आपको भेज दूंगा, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जितना मैक्सिमम आपको 10 याद रखना है, 10 पॉइंट्स, इनमें से 17 है टोटल, आपको 10 याद रखेंगे दैट इज इनफ फॉर यू। तो ड्रॉ कैसे करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास को, ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। उसमें आप हर एक पार्ट को मेंशन कर सकते हो। 6 नंबर वाला प्रिज्म है, प्रिज्म के नीचे जो है वो प्रिज्म कैप होती है, जैसे कि हमारे कैमरा लेंस होते हैं तो उसको ढकने के लिए क्या होता है, कैमरा कवर होता है, सिमिलरली प्रिज्म कैप है, राइट। फिर 17 सनग्लासेस है, राइट। तो इसके आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो असाइनमेंट में आपको पूछूंगा, राइट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस तरह से, ये पीपीटी भी आपके कंटेंट में है, राइट। अगर हम सर्वेयर कंपास की बात करें तो सर्वेयर कंपास पे भी आपको इस तरह से पार्ट्स याद रखने, स्क्रू होता है, मैग्नेटिक निडल, वेन है अलग अलग, आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन, बबल ट्यूब्स है, दिस इज द मॉडिफाइड, और समटाइम्स ऑफ पॉकेट compass is also there, okay, so you can keep it in your pocket and you can check it out for compass survey anywhere. These are the basic two systems of the compass survey: wall circle bearing, quadrantical bearing, sometimes it is referred as a reduced bearing. अब आपको ये पता है कि वॉल सर्कल बेरिंग में से क्वाड्रेंटिकल बेरिंग कैसे फाइंड करना है और क्यूबी में से WCB कैसे फाइंड करना है, राइट। आपने एग्जांपल्स किया है, मैं आपको ब्रीफिंग बता देता हूँ। वॉल सर्कल बेरिंग में 360 डिग्री तक हम जा सकते हैं। क्वाड्रेंटिकल बेरिंग में क्वाड्रेंट यानी कि पार्ट यानी कि हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे, 90 90 90 90, राइट। तो वॉल सर्कल बेरिंग यानी कि आप क्लॉक याद रख दीजिए, ओके। सर्कल आता है, सर्कल C फॉर सर्कल एंड C फॉर क्लॉक। तो आपकी घड़ी जिस तरह से मूव करती है वैसे आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 360 की जगह में आपको 12 o'clock लिख सकता हूँ, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock एंड 12 o'clock। तो आपकी घड़ी किस तरह से मूव करती है उस तरह से आपको रीडिंग लेना है। अगर आपकी लाइन यहाँ पे है तो आपको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मूवमेंट लेनी है, रीडिंग लेनी है नॉर्थ डायरेक्शन से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, यू आर अवेयर अबाउट इट। Then in quadrantical bearing you can take a reading from both side, north and south, either in a clockwise direction and anti-clockwise direction, okay. So these things you need to keep in mind.
ना वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये आपको नहीं पता होगा, ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी हम कंपास सर्वे करने जाते हैं, ठीक है, तो कंपास सर्वे से पहले हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है टेम्पररी जो आपको हर बार करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट जो आप रेगुलर इंटरवल पे करोगे, राइट। तो कोई भी, जब कभी भी आप कंपास सर्वे करने जाओ उससे पहले आपको ये टेम्पररी एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, राइट। तो मैं आपको ये ब्रीफिंग बता देता हूँ। टेम्पररी यानी कि हर बार आपको करना है। तो सबसे पहले आपका कंपास का सेंटर जो है वो आपका ओरिजिनल ग्राउंड के सेंटर के साथ मैच होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंटरिंग। सबसे पहले आपको सेंटरिंग करना पड़ेगा, वो हर बार होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कंपास लेवल में होना चाहिए, ओके, बिकॉज एक्चुअली वी आर मेजरिंग एंगल्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, तो वो लेवल में भी होना चाहिए। उसके बाद फोकसिंग, यहाँ पे आपके ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो है आपकी आइज का विजन जो है वो वेराई करता है, तो इसीलिए आपका फोकसिंग में आपको खास ध्यान रखना है कि आप जो जिस ऑब्जेक्ट को फोकस करना है उसी पे ही आप फोकस कीजिए, दैट इज द फोकसिंग। एंड फाइनली टेकिंग ऑफ योर रीडिंग्स, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ द बेरिंग लाइन, आपको वो इस तरह से एंगल आपको मेजर करना है, राइट। तो सबसे पहले आपका सेंटर मैच होना चाहिए, उसके बाद आपको कंपास को लेवल करना पड़ेगा, उसके बाद फोकसिंग, लास्टली टेक ए रीडिंग। सो दिस आर द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास। ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई वहां पे पॉइंट वाइज मैनर में लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है, राइट। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन, ओके, हाउ टू टेक द ऑब्जर्वेशन। मीनवाइल नाउ इन केस ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट, तो परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि आपको रेगुलर इंटरवल यानी कि साल में 2 बार, ठीक है, या फिर साल में 3 बार आपको ये एडजस्ट करना पड़ता है। ये कंपनी करती है, मैन्युफैक्चरर करती है, ठीक है, लेबोरेटरीज होते हैं, कंसल्टेंसी होती है, वो करेंगे। आपने कंपास सर्वे यूज करते करते आप गए और 3 या 4 महीना हो गया, अब एक बार आप चेक करा लीजिए कि आपके कंपास जो है वो आपका तो कंपास तो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट इन केस ऑफ व्हाट, साइड वेंच, आप जिसमें से देख रहे हो वो तो 90 डिग्री पे है ना, राइट। एडजस्टमेंट ऑफ द निडल एंड एडजस्टमेंट ऑफ द पावेट, ठीक है। तो सर हम्म, थोड़ा पीछे कीजिए ना, वो स्क्रीनशॉट लेना है। कौन सा वाला? अच्छा, ये वाला, इसका थोड़ा इसका पीछे। ओके, इसका हाँ इसका हाँ सर। एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये पीपीटी सारी है आपके एमयू कंटेंट में है, डोंट वरी, ओके। ये सारी चीज एज इट इज वहाँ पे है, आप वहीं पे भी देख सकते हो। सिंपल आपको डाउनलोड करना है ना, 1 MB की नहीं होगी, ठीक। तो एडजस्टमेंट साइट वेन वो कैसे करेंगे? तो कभी कभार क्या होता है कि साइट वेन किसको बोलेंगे, मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। ये आपकी साइट वेन है, देख रहा है? तो ये कई बार क्या होता है कि खुद ही मुड़ जाती है ना, तो उसको पता नहीं रहता कि ये 90 डिग्री, खुद 90 डिग्री पे है, तो दूसरों को क्या मेजर करेगा। सो सिमिलरली आपको वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मेरी साइट वेन जो है वो परफेक्ट है कि नहीं, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट आप लेवल कर दीजिए, उसके बाद लंबो सेट कीजिए और आपको अल्टीमेटली रिमूव करनी पड़ेगी वो इफेक्ट, यानी कि साइट वेन आप बदल दीजिए या फिर आप नया कंपास प्रीफर कर लीजिए, राइट। देन एडजस्टमेंट इन केस ऑफ नीडल, जैसे जैसे आप नीडल को वर्कआउट करोगे उसकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। स्ट्रेटनिंग ऑफ द नीडल, समटाइम्स द नीडल इटसेल्फ बेंडेड ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। नीडल किसको कहेंगे,
ये आपकी नीडल है, ये आपकी नीडल है, राइट। तो इसकी करेक्शन करनी पड़ती है अंदर, कंपास खोल के आपको नीडल की करेक्शन करनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद नीडल जिस पे खड़ी है वो पाइवोट की आपके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वर्टिकली बेंड हुए है कि नहीं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा नीडल के बारे में, राइट। उसके बाद पाइवोट, पाइवोट सेंटर में होना चाहिए पहले तो, राइट। ये सर्कल है आपका, पाइवोट अगर यहाँ पे है तो रीडिंग गलत आएगा। पाइवोट कहाँ होना चाहिए? सेंटर पे, एग्जैक्ट। इसको कट कीजिए सेंटर में, राइट। दिस इज ए सर्कल वी कैन कंसीडर, और वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होना चाहिए, तभी आपकी जो है प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास आपका काम करेगा, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जो बात करते हैं ये बेरिंग के बारे में आपको पता है, मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। सो ये सर्कल जो है आपका वो आपकी अर्थ है, राइट। मेरिडियन और बेरिंग की बात कर रहे हैं हम। तो सर्कल जो आप पूरा अर्थ है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो स्लाइटली टिल्टेड है, राइट, फ्रॉम इट्स एक्चुअल 90 डिग्री, राइट। तो कितनी टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल है वो कितना है? 23 डिग्री। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टिल्टेड होने की वजह से आपकी जो नीड है वो भी टिल्ट हो जाएगी, कितनी? मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे कि आप 4 भाग में डिवाइड करेंगे ओ को, राइट। तो वो आपको अर्थ को 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे जो है आपकी ट्रू नॉर्थ होगी, ठीक है, विच इज एक्चुअल वन, बट ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ अर्थ वी आर गेटिंग मैग्नेटिक नॉर्थ हियर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम जो कंपास सर्वे काम करता है, ये दो हमारे रेफरेंस लाइन हो गए। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका ए और बी पॉइंट है, तो वो रेफरेंस लाइन चेंज होने की वजह से बेरिंग इज नथिंग बट दैट इज योर एंगल, ओके, एंगल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू सम रेफरेंस लाइन, ओके। तो ए बी अगर आप ट्रू नॉर्थ से मेजर करते हैं, ट्रू नॉर्थ यानी कि यहाँ से आप मेजर करते हैं, यानी कि अल्फा होता है, तो अल्फा हो गया ट्रू बेरिंग ऑफ लाइन ए बी। अगर आप मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करें हैं, ये बीटा हो गया लेट्स से, तो बीटा हो गया आपका मैग्नेटिक बेरिंग। जो यही चीजें हैं वो अलग कर रही है। अगर आप रेफरेंस लाइन ट्रू नॉर्थ लेते हैं तो आपकी हर एक लाइन का जो एंगल है वो ट्रू बेरिंग कहा जाएगा। अगर आपके रेफरेंस लाइन ट्रू नॉर्थ की जगह आपने मैग्नेटिक बेरिंग बेरिंग लिख ली तो वो हो जाएगा आपकी मैग्नेटिक बेरिंग्स। तो यहीं पे सारी चीजें की हुई है, राइट। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे भी मेंशन किए हुए, इमेज से आप समझ सकते हैं। उसके बाद एक होता है, अगर आप कहीं ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपका जो कंपास है काम नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना पड़ता है? एक अलग से रेफरेंस लाइन लेनी पड़ती है जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू ट्रू मेरिडियन में नहीं है, यानी कि ये पॉइंट भी आपको नहीं दिख रहा है और ये पॉइंट भी नहीं है। तब आपको क्या करना है? किसी भी एक लाइन ले लीजिए, लेटर से यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे आर्बिटरी लाइन। हमने एक एंगल बनाने के लिए रेफरेंस लाइन यहाँ पे ले ली आर, तो ये हो गई आपकी आर्बिटरी यानी कि टेम्पररी। और लास्ट में जो है ग्रिड बेरिंग है। ग्रिड यानी कि हम पूरे अर्थ को इस तरह से, आपको मालूम होगा इंटरनेट पे, ओके। अब जैसे मैं अर्थ लिखता हूँ, अर्थ ग्रिड लाइन, रेखांश અને અક્ષાંશ કહીએ ને આપણે એ, right. So this is the grid lines, you can see these are your grid lines, right. So this is the grid bearing or grid bearings or grid reference lines, ठीक है। तो वो भी अच्छे से आपको मालूम है। और we are stretching our lecture for 5 more minutes, okay, so don't worry, so that we can
understand the full lecture. फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, सो ये भी आपको पता है, राइट? तो फॉर्मूला आपको क्या है कि बैक बेरिंग जो है इज इक्वल टू फोर बेरिंग प्लस और माइनस 180। अगर आपका फोर बेरिंग 180 से कम है तो उसमें आप प्लस साइन यूज करेंगे, अगर आपका फोर बेरिंग 180 से ज्यादा है तो उसमें से आप माइनस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दें, अगर आपका फोर बेरिंग 43 डिग्री है तो उसमें बैक बेरिंग फाइंड करने के लिए आपको प्लस 180 करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 223 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे आपका फोर बेरिंग 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, यानी कि 322 डिग्री, तब आपको बैक बेरिंग फाइंड करने के लिए 180 पाद करना पड़ेगा 322 डिग्री में से। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल and which are the instrument used in the compass, same as in the chain survey. A prismatic compass is there, chain, tape, ranging rods, tripod, plumbob, arrows, right? And ये जो एंगल है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये वाला जो एंगल बन रहा है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये वाला लेट अस से मैग्नेटिक बेरिंग एम बी। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल है वो आपका कहा जाएगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, राइट? तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। तो कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो तो आपकी नॉर्थ साइड इस तरफ चेंज करेगी तो वो हो जाएगा ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन। वापस से हम चलते हैं वहां पे उस फिगर पे, राइट? तो अगर आपकी नीडल जो है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि हम ये कार्टेशियन सिस्टम यूज करते हैं, ईस्ट में जा रही है तो आप प्लस ले लीजिए, और वेस्ट में जा रही है, डब्ल्यू में जा रही है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आपको माइनस साइन लेना है। दिस इज द सिंपल वन। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके मैग्नेटिक बेरिंग की वैल्यू सेम है, ओके, so the line showing on the map to the place having the same declination, so it is called the isogonic line। ठीक है, तो हमने आइसो बार सुना है, आइसो बार जहाँ पे टेम्परेचर सेम होता है, जिस रीजन पे टेम्परेचर सेम होता है उसको हम आइसो बार बोलते हैं। सिमिलरली जहाँ पे जिस जिस लोकेशन पे आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम है उसको हम आइसोगोनिक लाइन बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल लाइन इज लाइक ए कंट्रोल लाइन, 15 डिग्री सेम है तो यहाँ पे हमने एक लाइन बना दी, उसको हम बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। और जहाँ पे जीरो डिक्लिनेशन है उसको हम बोलेंगे एगोनिक। ए इज द अपोजिट, यानी कि एगोनिक, एंटी। ओके, सो यू कैन सी हियर एगोनिक लाइन 0 डिग्री। ये दो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, राइट? Now let us talk about the errors. As I mentioned earlier, there are 3 types of the errors. इंस्ट्रूमेंट की गलती हो सकती है, अगर आपका पाइवोट ठीक जगह से सेंटर नहीं है, आपका पाइवोट वर्टिकल नहीं है, आपके वेंट बेंड कर दी हुई है, तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट एरर। दूसरी होती है पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर्स, आपके विजन के हिसाब से एरर होती है, आपने रीडिंग लेने में गड़बड़ी कर ली बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो आपकी हो जाएगी पर्सनल एरर। और लास्ट में एरर्स ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, कंपास सर्वे करते टाइम आपका सपोज अर्थक्वेक आ गया तो वो हो गया, आपका एरर हो गई। कंपास सर्वे करते टाइम आपका जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, आपका कंपास जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जैसे कि ये आपका अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, यानी कि तेज विंड बहने लगी, बारिश आ गई, so it will affect your work, so that is the natural causes, so that is the case। और लास्ट टॉपिक जो है वो आपका लोकल अट्रैक्शन है। समटाइम्स क्या होता है कि आप कंपास सर्वे करते हो तो वहां पे कोई, मान लीजिए आपके जेब में कोई मैग्नेट रखा है, ठीक है, आपके जेब में कंपास सर्वे आप कर रहे हो और आपके जेब में एक मैग्नेट है, ठीक है,
आपके भाई ने दिया है सपोज, और आपने अपने जेब में रख लिया, तो ओके, तो वो क्या करेगा, कंपास की जो निडल है ना वो आपकी जेब की तरफ मुड़ जाएगी। क्यों? कि आपने एक टेम्पररी मैग्नेट आपके जेब में है, आपकी जेब में, तो वो अर्थ के नॉर्थ पोल पे जाने की बजाय आपके जेब के नॉर्थ पोल पे आ जाएगी। तो वो होता है लोकल अट्रैक्शन। यानी कि कई बार क्या होता है कि जब बिजली के तार होते हैं उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तब मैग्नेट जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जहाँ पे आप कंपास सर्वे करते हो वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वायर्स है या टावर्स है, तो आपका कंपास सर्वे जो रिजल्ट है, कंपास की जो निडल है वो अट्रैक्ट हो जाती है किसी लोकल मैग्नेट की ओर। ठीक है, तो वो होता है लोकल अट्रैक्शन। सो एनी हाई वोल्टेज करंट इज पासिंग थ्रू योर रीजन ऑन विच यू आर गोइंग टू परफॉर्म ए कंपास सर्वे, तो वो आपका हो जाएगा लोकल अट्रैक्शन। एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन यू आर ऑब्जर्विंग इन योर निडल, दैट इज योर लोकल अट्रैक्शन। आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लोकल अट्रैक्शन, नेचुरल सोर्स एंड आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स में क्या होता है कि मान लीजिए आप जिस एरिया में सर्वे करते हैं वहां पे मैग्नेटिक रॉक है, वहां पे पत्थर ऐसा है कि जिसमें मैग्नेट का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तब एरर आ सकती है, लोकल अट्रैक्ट होता है। आयन ओर्स, जहां जहां Fe यानी कि आयन का कंटेंट है, जिस रॉक में भी आयन का कंटेंट है, तो हमारी मैग्नेट जो है आयन से अट्रैक्ट होता है, सो वो प्रॉब्लम होगा। आर्टिफिशियल में क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप कंपास सर्वे करते हो वहाँ पे स्टील का बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आपकी निडल वहाँ पे खींची चली जाएगी। रेलवेज है, यानी कि कोई भी आयन की चीज आपके आसपास नहीं होनी चाहिए जब आप कंपास सर्वे करते हो। ठीक है, अगर है तो उसके हिसाब से आपको करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज अ वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन। आयन के पाइप है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, मेटेलिक चेन है, स्टील टेप है, तो वो लोकल अट्रैक्शन ऑब्जर्व करेगी, राइट। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी नीडल जो है वो लोकली अट्रैक्ट हो गई है? तो पहली चीज आप ये कर सकते हो कि आपका जो ट्रावर्स बना है ऐसा, राइट, उसका आप इंटीरियर एंगल चेक कीजिए, उसका टोटल कीजिए। अगर वो टोटल जो है इस फॉर्मूला के हिसाब से ना आए तो आपका निडल जो है वो अट्रैक्ट हुआ है। कैसे? ट्राइंगल हमने लिया तो ट्राइंगल का समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, राइट। तो इस फॉर्मूले की वजह से कैसे फाइंड करेंगे 180? नंबर ऑफ साइड 3, तो 3 इंटू टी, 6 माइनस 4, 2 इंटू 90, 180। ओके, तो अगर आप 4 बाजुए है, राइट, तो ये आपका नंबर ऑफ साइड कितनी लेनी है, 4। तो ये इंटीरियर एंगल का समेशन जो है वो ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको मिलेगा, राइट। पुट 4 इन दिस, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 4, 9 टी इंटू 4 360। अगर आपका समेशन इंटीरियर एंगल का समेशन 360 डिग्री नहीं आता है इस टावर्स के लिए, तो आपकी निडल लोकली अट्रैक्ट हुई है, राइट। दूसरा कैसे आप फाइंड कर सकते हो? एज यूजुअल द डिफरेंस बिटवीन द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज ऑलवेज 180। आप फोर बेरिंग का टोटल कीजिए और बैक बेरिंग का टोटल कीजिए, उसका डिफरेंस जो है 180 डिग्री होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप लोकली अट्रैक्ट हुए हैं, राइट। एंड लास्टली व्हाट इज द फील्ड प्रोसीजर? आपको पहले रफ सर्वे करना पड़ता है। आपको एक रफ स्केच बना दीजिए, फिर ग्राउंड पे मार्किंग स्टेशन फिक्स कीजिए, लोकेट द स्टेशन कीजिए, मेजर एंड डेटा कलेक्ट कीजिए और फाइनली कैलकुलेट कीजिए। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ द चेन एंड कंपास सर्वेइंग. So this is the module number 3, which is the compass surveying. If you have any kind of doubt, you can ask me further. તમે વાંચજો, જોજો, અને કોઈ ડાઉટ હોય તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મને પૂછજો, ठीक है। शायद अभी आपको कुछ माइंड थोड़ा हैंग हो गया हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अच्छे से एक बार देख लेना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना। फिर भी कोई ज्यादा डाउट है तो आप मुझे क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन डाउट जो है हम सोल्व कर देंगे, राइट। तो अब क्या कीजिए, आप अपना रोल नंबर जो है अटेंडेंस बॉक्स में लिख दीजिए और
जिसको डाउट है वो यहाँ पे, मैं हूँ अभी 2 मिनट के लिए, राइट। बाकी जो है वो लीव कर सकते हैं। अंकित कुमार, केवल दबे। Any doubts?